Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, as you all know that we have completed our month of August. The chapter was Unit 3, Computer in the Society. Students, I have given you all the work and explanation in my videos, and now we are starting our month of September, which is Unit 4, More on Windows 7. Students, it is quite interesting chapter as well as very informative. So I hope you will listen my all video carefully. Unit 4, More on Windows 7. Students, Microsoft Windows is one of the most popular operating system in the world. It is a computer program और सॉफ्टवेयर. Microsoft Windows जो है स्टूडेंट्स हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारी दुनिया में. मोस्ट ऑफ प्लेसेस पर हमारा Microsoft Windows ही यूज़ हो रहा होता है. इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर. ये एक कंप्यूटर का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है. विंडोज 10 इज द लार्जेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. अब तक का जो लार्जेस्ट वर्जन है वो है विंडोज 7, विंडोज 10. व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर आफ्टर अ फ्यू सेकेंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी. व्हाइल लोडिंग पिक्चर ऑफ द विंडोज लोगो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. स्टूडेंट्स, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके कंप्यूटर पे विंडोज का लोगो बना हुआ आ रहा होता है और उसके नीचे लोडिंग लिखा हुआ होता है. ये वही लोडिंग है कि वो आपका पूरा सिस्टम अपडेट कर रहा होता है. आपके सिस्टम पे आपके काम करने के लिए तमाम एप्लीकेशंस अपडेट कर रहा होता है. आफ्टर अ फ्यू मोर सेकेंड्स यू विल सी सम टेक्स्ट स्क्रॉलिंग द स्क्रीन. अ ब्लू कलर्ड विंडोज screen appears with some pictures on it. This screen is called desktop and the pictures are called icons. Students, जब हमारा कंप्यूटर लोडिंग ले लेता है और वो ऑन हो जाता है तो सबसे पहले स्क्रीन जो हमारे पास आती है वो कहलाती है डेस्कटॉप और उसके ऊपर जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं वो कहलाते हैं आइकन्स. हर आइकन में अलग काम परफॉर्म करने की तमाम चीज़ें होती हैं और डेस्कटॉप पे जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं इन्हें हम आइकन्स कहते हैं. Students, let us now understand the desktop and icon in detail with the help of an example. Desktop. A desktop is the first screen which appears on the monitor when you switch on your computer. It is the main screen in window with many small pictures on it called icons. It is similar to any other desk or table that you work on. Students, डेस्कटॉप बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह से आपकी कोई स्टडी टेबल या डेस्क हो जिसके ऊपर आप बैठ के काम करते हैं. डेस्कटॉप का नाम हम सुनते ही समझ में आ जाता है हमें डेस्कटॉप यानी कि हमारी इस तरह की टेबल जहां हम काम करते हैं. इस टेबल से मुराद ये कि हमारी उस टेबल के ऊपर तमाम हमारा सामान हमारे सामने मौजूद होता है ताकि हम अपना जो टास्क है वो फ्लुएंटली परफॉर्म कर सकें. So desktop is like our study table. For example, a student's study table usually would have some books, pencils, erasers, ruler arranged on the top of it, which helps the student to use them as and when needed. A drawing table might probably have some drawing tools like pencils, crayons, watercolor, brushes, palettes, etc. Similarly, a computer desktop contains a list of items that help us to work with Microsoft Windows efficiently. We give another example. Your mother wants to bake a cake today. What would she do? She will gather the ingredients and arrange them on the kitchen platform and then make a cake. The ingredients on the platform would help her to bake a cake quickly. She would never switch on microwave oven
and then go to the market and buy the ingredients for the cake. Similarly, a desktop has some useful icons which allow access to files and data quickly. Instead of searching through the drives and folders which each time you want to open a specific file. Students, जब हमें कोई काम करना होता है या स्टूडेंट्स की कोई टेबल होती है तो उसके ऊपर उसका पेंसिल, रेजर, रूलर सब चीज़ें पहले से मौजूद होती है, अरेंज हुई हुई होती हैं. इसी तरह अगर कोई ड्राइंग टेबल है तो उसके तमाम ड्राइंग टूल्स, पेंसिल, क्रेयॉन, वाटर कलर, ब्रशेस, पैलेट्स वो सब होंगे. यही एग्जाम्पल दिए इन्होंने कि अगर आपकी मम्मा को केक बेक करना है तो क्या ऐसा होगा कि वो पहले ओवन ओपन कर दें और फिर जाए मार्केट और तमाम इंग्रेडिएंट्स लाएं और जब तक ओवन ओपन रहे? इस तरह से तो नहीं होगा ना. यानी हर चीज स्टेप बाय स्टेप अरेंज फॉर्म में होती है. तो यही काम होता है डेस्कटॉप का. आइकन्स. Icons are small pictures that represent a specific application, programs, a file or folder which allow you to access data quickly. Icons act like shortcut to various programs, just as a mark book, help you to locate the page you want instantly. Icons do help you to open a particular file, folder or program quickly. To open a program through an icon, you just need to double click on the icon. Certain icons are permanent fixture on the desktop. Let us learn and understand a few of them. A Windows desktop usually consists of the following icons: My Documents, My Computer, Recycle Bin, My Network Places and other such icons. Students, icons हमारे वो तमाम छोटी छोटी पिक्चर्स जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर साइड में होती हैं, अरेंज हुई हुई होती हैं, वो हमारी आइकन्स हैं. आइकन्स के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं और हम उनके मुताबिक ही अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं. और जो हमारा डेस्कटॉप होता है उस पर यूजुअली कुछ आइकन्स जो बहुत कॉमन हैं, यानी मिनिमम वो आइकन आपके ज़रूर मौजूद होंगे, जैसे माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, My Network Places and such other icons. It means that your desktop will have these icons in common. Students, इन icons में तमाम काम अलग अलग तरीके से परफॉर्म हो रहा होता है. जैसे रिसाइकल बिन का काम माई डॉक्यूमेंट्स या माई कंप्यूटर के काम से बिल्कुल अलग है. इसी तरह माई नेटवर्क प्लेसेस का काम रिसाइकल बिन और माई डॉक्यूमेंट्स या माई कंप्यूटर से बिल्कुल अलग है. तो ये सब होते हैं हमारे icons. Recycle bin. The recycle bin icon represents the dustbin where we put all the trash when we delete a file or folder. They are stored in the recycle bin. जब भी हम अपने कंप्यूटर से कहीं भी किसी भी फोल्डर से कोई चीज़ डिलीट करेंगे तो वो चीज़ हमारी रिसाइकल बिन में आ जाएगी. ये हमारे कंप्यूटर का डस्टबिन होता है. इट मीन्स कि हम डिलीट तो कर देंगे मगर वो कंप्यूटर से पूरी तरीके से रिमूव नहीं होगी, बल्कि वो रिसाइकल बिन में पड़ी रहेगी. अगर हम उसको वापस रीस्टोर करना चाहें, कोई चीज़ हमसे गलती से डिलीट हो गई है या पहले डिलीट कर दी थी और अब चाहते हैं कि हम वापस रीस्टोर कर लें, तो हम रिसाइकल बिन पे जाएंगे और उस फोल्डर या फाइल को हम वापस रीस्टोर कर लेंगे. तो ये हमारा बहुत ही यूजफुल आइकन है या एप्लीकेशन है. Taskbar. It is located at the bottom of the screen. Students, ये स्क्रीन के बॉटम में हमें दिखाई देता है. Start button. As the name suggests, this button is used to start any program. It is placed on left corner of the taskbar. When you click the start button, a menu appears which consists of various programs. Some of these programs have an arrow symbol next to them, which indicates that it has more subtopics to the program. Another list of programs appear. When you place a mouse pointer on the arrow, this menu is known as submenu. Students, टास्क बार के कॉर्नर पे आपको विंडोज की एक राउंड शेप में विंडोज की एक पिक्चर दिख रही है. आप उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वहां से एक मेन्यू खुलेगा और उस मेन्यू के अंदर काफी सारे ऑप्शंस, फाइल, फोल्डर्स होंगे. उन फाइल फोल्डर्स में से किसी फाइल या फोल्डर के आगे एक छोटा सा एरो बना हुआ है ब्लैक कलर का, किसी के आगे.
आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें से सब मेन्यू खुलेगा और आप अपना काम परफॉर्म करेंगे। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ विंडोज प्रोग्राम एप्लीकेशन आर टाइटल बार, कंट्रोल मेन्यू, कंट्रोल बटन्स, द रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, scroll bars, document area. When you start a program, a window of that program appear. All Windows application have some common features and commands. Students, आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, किसी भी ऐप को ओपन करेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपको कुछ चीजें कॉमनली मिलेंगी, जैसे कि टाइटल बार उस फाइल या फोल्डर में, उस एप्लीकेशन में या उस सॉफ्टवेयर में टाइटल बार जरूर होगी, कंट्रोल मेन्यू जरूर होगा, कंट्रोल बटन्स, द रिबन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्विक एक्सेस टूल बार, स्क्रॉल बार एंड डॉक्यूमेंट एरिया. Now we have to understand some of these features with an example of our WordPad window. Title bar. The title bar is located at the top of the window. On the left side of the bar is displayed the name of the program and the documents you are currently working on. On the right hand corner, this bar are three buttons are called control buttons. Students, आपको टाइटल बार में तमाम चीजें मिल जाएंगी जो आपको वर्क परफॉर्म करने में, यानी जो करंट वर्क है आपका डॉक्यूमेंट, उसके लिए आपको 3 ऑप्शन देगी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड काफी सारे ऑप्शन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज का, बाकी फाइल, न्यू फाइल, डॉक्यूमेंट की तमाम इंफॉर्मेशन आपको आपके टाइटल बार पे ही मिलेगी. टाइटल के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऑन द टॉप होगी. Control buttons. There are 3 control buttons which help you to increase or decrease the size of windows and also to close the windows. They are minimize button, maximize button and close button. Students, as you can see in picture, there are 3 small boxes at right side corner. These buttons are called control buttons. कंट्रोल बटन का स्टूडेंट काम होता है पेज को मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना और क्लोज करना. तो हमारी जो डॉक्यूमेंट्स या फाइल है, हम उसको मिनिमाइज करके किसी और डॉक्यूमेंट्स में जाके जब वापस हम आएंगे तो वो हमें वैसे ही हमें मिल जाएगा. मैक्सिमाइज का भी यही है कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट छोटा है और पूरे पेज पे ओपन नहीं हुआ है तो हम मैक्सिमाइज का बटन क्लिक करेंगे तो वो हमारे पूरे पेज पर ओपन हो जाएगा. और क्लोज का बटन हमारी तमाम चीजों को कट या क्लोज कर देगा. द प्रोग्राम बटन appears on the taskbar as shown below to minimizing. If you want to restore a window after you have minimized it, that button of the window on the taskbar, the window appears. Students, ये जो हम मिनिमाइज करते हैं तो हमारी जो फाइल या फोल्डर है वो हमारी टास्क बार के ऊपर आ जाता है छोटे से आइकन के तौर पे, जैसे कि आपको पिक्चर में एरो के जरिए शो कराया हुआ है. हमने ये ओपन किया हुआ था, जब हमने मिनिमाइज किया तो इस तरह से छोटे पिक्चर में आ गया. अब जब इसके ऊपर हम वापस क्लिक करेंगे तो ये उसी तरीके से रीअपियर हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, हमें वैसे ही दिखना शुरू हो जाएगा. और जब हम इसे देखेंगे तो हम अपना काम उस जगह से ही स्टार्ट कर लेंगे बगैर किसी चेंजिंग के. ना हमने वो सेव किया होगा ना कुछ, बस मिनिमाइज करके वापस मैक्सिमाइज करेंगे, उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस आपकी स्क्रीन पर रीअपियर हो जाएगा. कंट्रोल मेन्यू. द कंट्रोल मेन्यू आइकन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द बार. When you click on the icon, the sub-menu appears with similar to the use of the control buttons. Students, control menu आपका लेफ्ट कॉर्नर पे होता है टाइटल बार के. जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं एक सब मेन्यू अपेयर होता है जो बिल्कुल सिमिलर होता है कंट्रोल बटन्स के. मतलब उसके अंदर आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के ऑप्शंस मिल जाएंगे. द रिबन, इट इज अ बार जस्ट बिलो द टाइटल बार. स्टूडेंट्स, रिबन जो है हमारे कंप्यूटर का सबसे बेसिक
और बहुत यूजफुल हिस्सा होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारी फाइल या फोल्डर में परफॉर्म करने के लिए तमाम टूल्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू ड्रॉ अ पिक्चर, किसी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए यू यूज लाइक ड्राइंग पेपर, पेंसिल, कलर, ब्रशेस। सिमिलर, होम मेन्यू हैज वेरियस टूल टू क्रिएट, एडिट, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट, पिक्चर को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए हमें रिबन में से ही हेल्प लेनी पड़ती है, और रिबन के अंदर ये तमाम ऑप्शन मौजूद होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, दिस बार इज लोकेटेड ऑन द टॉप मोस्ट साइड ऑफ द विंडोज। स्टूडेंट्स, क्विक एक्सेस टूल बार हमारी न्यू फाइल ओपन करने के लिए और दूसरी फाइल, उसी फाइल में रहते हुए दूसरी फाइल ओपन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, अनडू, रीडू, कुछ भी करने के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार को ही यूज करते हैं। इसके नाम से ही स्टूडेंट्स आपको पता चल जाएगा, क्विक एक्सेस मतलब हमें जल्द से जल्द इसका एक्सेस, यानी हर ऑप्शन तक हमें जल्द से जल्द क्विकली एक्सेस मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, कंट्रोल मेन्यू, द रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार are most important features of any application. Now scroll bar. Sometimes the work area doesn't fit in the screen and you cannot see the entire text on the document. Scroll bar help you to view the entire work. Students, ये जो scroll bar आपको साइड में दिख रही है, एरो बना हुआ है पिक्चर में, इस scroll bar की मदद से हम अपने पेज को अप या डाउन कर सकते हैं, और इस पेज को अप या डाउन करने से हमें हमारा तमाम काम, एंटायर वर्क हमें शो हो जाता है, क्योंकि कोई भी वर्क स्क्रीन के ऊपर अगर कम है तो वो स्क्रीन के ऊपर ही रहेगा, और अगर ज़्यादा है तो वो स्क्रीन के ऊपर चले जाता है और हमें नीचे से न्यू पेज प्रोवाइड होता रहता है। तो जैसे आप सिमिलरली कॉपी में लिखना शुरू करते हैं, आप ऊपर से लिखना शुरू करते हैं, ऊपर की लाइंस फिल करते 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 नीचे आ जाते हैं। हम अपनी टेक्स्ट बुक में तो कॉपी का पेज टर्न ओवर करते हैं और दूसरे पेज पे कर लेते हैं, लेकिन इसमें पेज टर्न करने जैसा तो कुछ नहीं है, तो इसमें स्क्रॉल करते हैं, यानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। हाइडिंग द डेस्कटॉप आइकन, टू हाइड द डेस्कटॉप आइकन फॉलो द स्टेप शोन ब्लू। स्टूडेंट्स, डेस्कटॉप आइकन को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन। स्टूडेंट्स, डेस्कटॉप के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें आप व्यू में जाएंगे, आप क्लिक करेंगे शो डेस्कटॉप आइकन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आइकन अपीयर होगा सून एज यू अनचेंज द शो डेस्कटॉप आइकन ऑप्शन। जब आप शो डेस्कटॉप आइकन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहां आपको अलग अलग जो ऑप्शंस होंगे, आप उस पर क्लिक करके अपने डेस्कटॉप आइकन को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, एक पिक्चर में आपको तमाम आइकन्स दिख रहे हैं और एक पिक्चर में आपको एक भी आइकन नहीं दिख रहा है, बल्कि नीचे सिर्फ टास्क बार दिख रही है। तो ये आप किससे परफॉर्म कर सकते हैं? डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके व्यू के ऑप्शन में जाके ये कर सकते हैं। द आइकन रिअपियर ऑन द डेस्कटॉप व्हेन यू क्लिक ऑन द डेस्कटॉप आइकन ऑप्शन अगेन। इसी तरीके से वापस ये ऑप्शंस लाने के लिए आप राइट क्लिक करके ही व्यू के ऑप्शन में जाके ही इसी तरीके से जिस तरह आपने हटाया था व्यू के ऑप्शन में जाके, इसी तरीके से आप वापस लाएंगे। स्क्रीन सेवर, a screensaver is a moving picture that reappear when your computer is left idle for some time. Students, ये जो स्क्रीन सेवर होता है हमारा, ये मूविंग पिक्चर्स अपीयर हो रही होती है हमारे कंप्यूटर पे, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगती हैं और हमारे कंप्यूटर को बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं। ये स्क्रीन सेवर हमारा जब ओपन होता है, जब हम काफ़ी देर के लिए अपने कंप्यूटर से दूर रहते हैं या कोई काम परफॉर्म किए बगैर कंप्यूटर को ऑन रहने देते हैं। ये इस स्क्रीन सेवर का मेन मकसद ये है कि आपके जो करंट वर्क को वो हाइड कर दे ताकि कोई और ना देख सके। चेंजिंग विंडोज थीम, a theme is a look of or feel on an operating system. Changing the theme of Windows, change the desktop background, Windows color, sounds and screensaver. Let us learn how to change a window theme. Students, जब आप किसी भी विंडो थीम को चेंज करते हैं, a theme is a look and feel of an operating system. Changing the theme of Windows, changing the desktop background, Windows color, sound and screensaver. जब भी आप किसी विंडोज की थीम चेंज करेंगे तो आपको थीम महसूस होगी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चेंज हुई हुई। फिर क्या क्या चेंज होगा साथ में थीम के साथ? विंडोज,
desktop background, window color, sounds and screen saver. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हम विंडो थीम को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं. A desktop background displays the selected theme. स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाके अपनी जो थीम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. और थीम सिलेक्ट करने से हमारी जो तमाम चीज़ें हैं, बैकग्राउंड, साउंड, कलर्स, स्क्रीन सेवर, वो सब हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गिविंग यू द टास्क ऑफ टुडे. एक्सरसाइज बी, मैच द फॉलोइंग. मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, क्लोज बटन, हमें इनको मैच करना है इनके राइट सिंबल के साथ. तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमाइज बटन बॉक्स टाइप होता है और वो कंट्रोल बटन जहाँ राइट साइड कॉर्नर में ऊपर दिए हुए होते हैं आपको, उसी में होता है. मिनिमाइज बटन डैश की तरह होता है और क्लोज बटन रेड कट होता है, रेड बटन होता है जिसके ऊपर क्रॉस का निशान बना होता है. तो इनको हमने मैच करना है. मैंने आपको मैच करके दिखाया है, आपने इसी तरीके से अपनी कॉपी में इस काम को कर लेना है. काम करने से पहले आपने मंथ ऑफ सितंबर का ब्यूटीफुल टाइटल पेज बनाना है. आपने अपने चैप्टर का मोर ऑन विंडोज 7 यूनिट 4 इसका एक टाइटल पेज बनाना है. और फिर आपने फर्स्ट वर्क मैच द फॉलोइंग यानी ये एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज बहुत ईजी है स्टूडेंट्स और बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ मैचिंग है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इसी तरीके से आप ये मैचिंग के बाद, मैच द फॉलोइंग के बाद आप एक्सरसाइज सी करेंगे, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो आई एम गोइंग टू रीड. नंबर ए, our desktop is the first screen which appears on the monitor when you switch on your computer. The maximize button, minimize button is used to increase the size of the window to full screen. The two scroll bars are horizontal and vertical scroll bars. The quick access toolbar includes save, undo, redo option. Number 4, the quick access toolbar includes save, undo and redo options. Number 5, ribbon is located below the title bar in WordPad. Students, as you can see, I have defined you, I have read all the fill in the blanks for you. Now, do your work in your copy